اگلی لائن کا تو بیٹھ جائے نا اسٹیپ وائز بیٹھتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چودھری شاہنواز صاحب زندہ باد. جناب چودھری شاہنواز صاحب زندہ باد. انڈین نیشنل کانگریس زندہ باد. انڈین نیشنل کانگریس زندہ باد. انڈین نیشنل کانگریس زندہ باد. جی آج سنئی گاؤں سے جو ہے بھاری تعداد میں لوگ جو ہے کانگریس پارٹی سے جڑے ہیں اور آج جوائننگ بھی کی ہے، تو کیا کہیں گے؟ دیکھو سر، ہمارے یہ جو لوگ یہاں آئے ہیں یہ میکسیمم لوگ ان میں ایسے ہیں جو پہلے سے کانگریس میں جڑے ہوئے تھے پچھلے 50 سال سے. تو آج ہم شاہنواز صاحب سے جڑنے کے لیے یہاں آئے. بہت اچھا. اس سے پہلے بھی آپ کے اس طرح کے کام ہوا کرتے نو تھے؟ سر، میں نیشنل کانفرنس کا ڈیلیگیٹ ہوں. 1996 سے لے کر آج تک ہم نے نیشنل کانفرنس کا ہاتھ تھاما رہا ہے. کبھی ہمیں لیڈر کا منہ نہیں دیکھا ہمیں کبھی کیا الیکشن کے بعد. باقی عوام سے اس تو پہلی سیاست اور اس سیاست میں کو فرق لگو تم؟ جی، اس تو پہلی سیاست میں اس سیاست میں یہ فرق ہے کہ پہلی سیاست جڑی ہے وہ خالی سیاست ہی تھی، اس میں ڈیولپمنٹ نہیں تھی. جڑی شاہنواز صاحب کی سیاست ہے یا سیاست تو ہٹ گیا ڈیولپمنٹ کی سیاست ہے. تو انہوں نے مبارک دوں، انہوں نے بہت بڑی توقع ہے ہماری. شاہنواز چودھری میں کیا جادو دکھایا ایسا آپ کو کہ ہر پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ جوائن کر رہے ہیں؟ سر اس میں اعلیٰ اخلاق ہے، اعلیٰ اخلاق کا آدمی ہے، اور اس میں ازم پرستی نہیں ہے، اس میں مسلک نوازی نہیں ہے. انسان دوست ہے، دلی بیٹھ کے بھی اپنے گاؤں کا خیال رکھتا ہے، جموں بیٹھ کے بھی. ہاں کرتا نہیں وقت لگاڑو یہ ہے مارو ورد پرانو یا یہ ہماری گری آزاری دا لئیو کر پچھان بھی ماری. تو ہوں شاہ صاحب نے یہ چیز کہوں کہ یہ شہر جڑو منا 40 سال انہوں نے رہ گیا درانو پیو. تو ہوں تو توقع رکھوں کہ مارا جڑو پیچھا استحصال ہو، کیونکہ میری عمر 60 سال ہو گئی ہے. سیاسی لیڈروں نے ہو رہی ہوں مجھے پتہ ہے کہ سیاست کے ہے. میں سب کچھ دیکھے ہوا ہے. ہوں یہ چاہوں کہ میرا اس شہر میں یہ یاد رکھیں کیونکہ یہ ہمارا پرانو ورد ہے. ہوں یاد رکھتا ہوں انہوں کو. جو آپ کے مطالبات تھے وہ پورے ہوئے ہیں؟ ہم نے مطالبات ان کو کیے ہی نہیں. پرائرٹی بیس پہ ہم نے کہا جو کام آتا ہے کرتے چلو، لیکن وہ دن رات ایک کر رہے ہیں. سب سے زیادہ ہمارا کام جو ہوا ہے، ہمیں لفٹ اسکیم جو دی گئی ہے کروڑوں میں ہے. ہماری جو سڑکیں ہیں وہ کروڑوں میں ہیں. اس سے پہلے شاہنواز صاحب نے جڑا وعدہ تھارا نال کیا تھا وہ تھارا وعدہ پورا ہوا ہے؟ انشاءاللہ شاہنواز صاحب نے پہلا ہی سال میں 20 سڑکوں کا پروجیکٹ جڑا ہے آنیا. اور اس ویلے سنئی میں دیکھو یا مختلف گراؤں میں دیکھو سڑکوں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے اور سب تو ڈیولپمنٹ ہونے کو کدے کوئی طریقہ ہے. مغل صاحب جی آج سنئی گاؤں سے جو ہے بھاری تعداد میں لوگ جو ہے کانگریس پارٹی سے جڑے ہیں اور آج جوائننگ بھی کی ہے، تو کیا کہیں گے؟ دیکھو سر، ہمارے یہ جو لوگ یہاں آئے ہیں یہ میکسیمم لوگ ان میں ایسے ہیں جو پہلے سے کانگریس میں جڑے ہوئے تھے پچھلے 50 سال سے. تو آج ہم شاہنواز صاحب سے جڑنے کے لیے یہاں آئے. بہت اچھا. اب پیچھے 50 سال ہم کانگریس سے جڑے رہے تو ہمارے یہ پسماندہ لوگ ہیں سنئی گاؤں کے. سڑکوں سے ہم محروم رہے، پانی سے ہم محروم رہے. تو جب سے شاہنواز صاحب DDC ممبر بنے ان سب لوگوں نے ان کو ووٹ دیے بغیر کسی پارٹی کے، کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ تھے. اور ہمارے چودھری صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے مینڈیٹ پہ تھے، لیکن ان لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا کیونکہ پچھلے 50 سال ہمارا استحصال ہوا. ہم ووٹ بھی دیتے رہے لیکن کام کوئی نہیں ہوا. تو میں نے چودھری صاحب مرحوم کے ایک جلسے میں ایک غزل بولی تھی جس کا ایک شعر کہیں مجھے یاد ہے. تو غزل کا عنوان تھا لئیو کر پچھان بھی ماری. تو اس میں ایک شعر تھا، میں نے ان کو کہا تھا کہ ہاں کرتا نہیں وقت لگاڑو یہ ہے مارو ورد پرانو یا یہ ہماری گری آزاری دا لئیو کر پچھان بھی ماری. تو ہوں شاہ صاحب نے یہ چیز کہوں کہ یہ شہر جڑو منا 40 سال انہوں نے رہ گیا درانو پیو.
तो उम्मीद तो तवक्का रखूं कि हमारा जो पिछा इस्तेसाल होया उसकी ये भरपाई करेगा। शाहनवाज साहब ने जड़ा वादा थारा नाल किया था वे थारा वादा पूरा होया है? इंशाअल्लाह शाहनवाज साहब ने पहला ही साल में 20 सड़कों का प्रोजेक्ट जड़ा है वे आनिया और इस वेले सनई में देखो या मुख्तलिफ गांव में देखो सड़कों की बुछाड़ हो रही है और सब तो डेवलपमेंट होने को कदे कोई तरीको है तो वो सड़क है। इस तो पहली सियासत और इस सियासत में को फर्क लगो तुमने? जी इस तो पहली सियासत में इस सियासत में यही फर्क है कि पहली सियासत जड़ी है वह खाली सियासत ही थी, उसमें डेवलपमेंट नहीं थी। तो जड़ी शाहनवाज साहब की सियासत है या सियासत तो हट गया डेवलपमेंट की सियासत है। तो इन्होंने मुबारक दूं और इन्होंने पर बहुत बड़ी तवक्का है हमारी। और ये लोग जड़ा आज इन्होंने को कुछ कांग्रेसी होता ज्वाइन करें कुछ नहीं कांग्रेसी वे भी ज्वाइन करें और मुख्तलिफ बरादरी का लोग हैं। हम यह चाहवा कि हमारा कोई इन्होंने को मुलाजमत का नहीं तो पीछा को कोटो भरे हुआ ये हमने सारा लोगों ने मुलाजमत दे छोड़ेगा। एक गरीब आदमी ना यो है कि उसका सड़क घर का नेड़ा चली जाए, उसना पानी टूटी लग जाए घर को, उसना बिजली को खंभो लाग जाए। बिजली तो भी आज भी हमारा लोग बहुत महरूम है और जिन्होंने खंभा नहीं, लेकिन शाहनवाज साहब की वसातत हूँ काफ़ी खंभा मिलया, ट्रांसफार्म मिलया, मजीद डिमांड हमारी इन्हों को मौजूद है। लिहाजा हूँ इन्हों तो या तवक्का रखूँ क्योंकि मेरी उम्र 60 साल हो गई है तो सियासी लीडरों ना हो रही हूँ मैंने पता है कि सियासत के है इन्हें सब कुछ देखे हुआ है। हूँ यह चाहूँ कि मेरा इस शेर में ये याद रखें क्योंकि यो हमारा पुराना विरदा है, हूँ याद रखा हूँ इन्हों को। शाह साहब आज बड़ी तादाद में जो लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है तो क्या मैसेज रहेगा? सबसे पहले तो सभी मीडिया के हजरात का बहुत शुक्रिया। आज बड़ी खुशी और मसरत का दिन है कि आज सनई गांव से एक बड़ी तादाद में वहां के सारे दानश्वर मौजूद बुजुर्ग शख्सियत और नौजवान साथी जो है आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। मास्टर फारूक साहब की सरपरस्ती में, हमारे सरपंच वहीद शाह साहब की और हाजी लतीफ़ साहब की जो है मौजूदगी में जो है यहाँ पे सारे लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है और हमारा साथ जो है आज खुल के जो है देने के लिए सारे लोग आए हैं। मैं तहे दिल से जो है अपने बुजुर्गों का और नौजवान साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ पे और कांग्रेस पार्टी पे भरोसा जताया और अलग अलग बरादरियों से सनई के लोग सारे आए हैं और जो मिशन हमारा था वो इंशाल्लाह पूरा होगा कि सुरनकोट में बिना ज़ात पात के, मज़हब के, बरादरियों के ऊपर उठकर जो सियासी नज़रिया बदलने की हमारा मिशन था कि डेवलपमेंट की सियासत हो, यहाँ 60-70 सालों से जो मजलूम लोग हैं जिनको उनका हक नहीं मिला है उनको हक देने की बात हो, तरक्की की बात हो, ताकि आज इस दौर में भी हमारा इलाका जो है वो पीछे ना रहे। उस मिशन पे हम कायम दायम हैं और बड़ा कारवां इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी और सुरनकोट में मजबूत होगी और इंशाल्लाह हम मांग भी करते हैं आज इस प्लेटफॉर्म से आपकी इजाज़त से कि जल्दी से जल्दी हुकूमत को जम्मू कश्मीर में जो है वो सरकार बनाने के लिए इलेक्शन करवाने चाहिए, असेंबली के इलेक्शन होने चाहिए। लोग इस वक्त जम्मू कश्मीर में परेशान हैं, बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं, अनएम्प्लॉयड यूथ सब परेशान हैं और जो हमारी यूटी का स्टेटस छीना गया है, आज ये भी मांग है कि उसको वापस स्टेट का दर्जा हमें दिया जाए, हमारा स्टेटस वापस हमें दिया जाए, जल्दी से इलेक्शन हो ताकि लोगों की जो मुसीबत है जो जम्मू कश्मीर खाई की तरफ जा रही है वो वापस जो है तरक्की की राह पे गामजन हो सके। और आखिर में मैं एक बार फिर जो है सभी लोगों का जिन्होंने भरोसा किया उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लतीफ़ साहब, आज आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और आपके साथ तकरीबन 100 के लगभग लोग और भी थे जिनने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, तो क्या समझ रहे हैं? ये सर मैं आपके माध्यम से पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें सुनने के लिए टाइम निकाला। हम अरसा दराज से परेशान हैं, एक मुसीबत हमारे सर से टलती नहीं, दूसरी आ जाती है। हमारे ये मजबूरी पेश आई कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग थे ज़्यादा, यहाँ पर कांग्रेसी लोग कम थे, लेकिन जब ये हम पे ये इंडिपेंडेंट शाहनवाज साहब ये जब 2019 में इनका इलेक्शन हुआ है, जब इनका इलेक्शन हुआ तो इन्होंने हमारे साथ
वफादारी का सबूत दिया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनके साथ हमने 1996 में मिलिटेंसी में हमने रात दिन करके 1/3 पोजीशन दी और सब कुछ किया। हमने रजौरी से तालब को और श्रीनगर से अल्ताफ बुखारी को उठा के दिल्ली तक भेजा। उन्होंने अपनी पार्टियां बनाई और उन्होंने अपना चूस चास लगाया, हमारा कुछ नहीं देखा। और लास्ट एक ही चीज हमारी बची थी कि हमारा घर की रखवाली करनी थी। शाहनवाज चौधरी ने शाहनवाज चौधरी में क्या जादू दिखाया ऐसा आपको कि हर पार्टी के लोग जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं? सर इसमें आला इखलाक का आदमी है और इसमें इज़्म परस्ती नहीं है, इसमें मसलक नवाजी नहीं है। इंसान दोस्त है, दिल्ली बैठ के भी अपने गांव का ख्याल रखता है, जम्मू बैठ के भी अपनी जो कंस्टिट्यूशन का ख्याल आपके रखता है। मुतालबात थे वो पूरे हुए हैं? हमने मुतालबात उनको किए ही नहीं। प्रायोरिटी बेस पे हमने कहा जो काम आता है करते चलो, लेकिन वो दिन रात एक कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हमारा काम जो हुआ है, हमें लिफ्ट स्कीम जो दी गई है करोड़ों में है, हमारी जो सड़कें हैं वो करोड़ों में है। इससे पहले भी आपके इस तरह के काम हुआ करते नो थे? सर, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का डेलीगेट हूँ। हमने 1996 से लेकर आज तक हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ थामा रहा है। कभी हमें लीडर का मुंह नहीं देखा हमें कभी क्या इलेक्शन के बाद। बाकी आवाम से आपकी क्या अपील रहेगी? मैं गुजारिश करता हूँ कि जैसा लद्दाख और करगिल में लोगों ने अपना काम कर दिखाया है, वैसे ही अपनी यूटी को खत्म करने के लिए और अपनी आर्टिकल को बहाल करने के लिए सबको एकता करनी चाहिए। एकता पे एक गट्ठा हो जाना चाहिए और अपनी स्टेट पार्टियों को कामयाब करके और कांग्रेस को कामयाब करके इन्होंने पार्लियामेंट में अपने बंदे भेजने चाहिए और अपनी स्टेट को दर्जा वापस लेना चाहिए।